Good morning, children. So now we are in lecture number 7 of chapter 2, First World War and Russian Revolution. Today, because of change in pen, some writings are light. So please excuse me for that. But I will read out what it is written on board. My today's topic is factors that caused First World War. Page number 11. Understood? Page number 11. Before starting this chapter, this topic, let me discuss about first and second lecture. In first and second lecture, I taught you. That is lecture number 5 and 6. I taught you why World War I took place. What was the reason for World War I? And under what circumstances which arose in Europe, which contributed to World War I? Right? Because it is rightly said that World War I basically invisibly started to get in existence at the time of geographical discoveries. क्योंकि geographical discoveries के समय यूरोपियंस लोगों ने इतनी तबाही मचाई, इतनी लूटपाट की, मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बताया था ना अफ्रीका के बारे में, अंकल टॉम की स्टोरी सुनाई थी, बराबर है? तो इतनी तबाही मचाने लगे, इतनी लूटपाट मचाने लगे, इतनी ग्रीड बढ़ गई थी कि जिसका कोई अंत ही नहीं था। और हिस्टोरियंस मानते थे कि इसका अंत जब होगा ना तब भयानक होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसका अंत ऐसा होगा। ठीक वैसे उनके हिसाब से ही हुआ जो उन लोगों ने सोचा था वही हुआ। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद जो समय आया तकरीबन 100-150 साल का, and in that sort of time Europeans started to establish colonies, because at that time I told you industrial revolution started in Europe, and because of industrial revolution huge production process took place. So these industries required heavy amount of raw material, as well as when this raw material was processed, they required finished goods market. So there was a need to establish colonies around the world. Why? Because if a colony is established, these both needs can be satisfied simultaneously. Procurement of raw material and disposal of finished goods. अपना धंधा चलता रहे। तो इसी ग्रीड में उन्होंने एशिया को गुलाम बनाया, मिडिल ईस्ट एशिया को गुलाम बनाया, चाइना को गुलाम बनाया। इंडिया तो पहले से उसकी गुलामी में आ गया था। तो एशिया के दो बड़े कंट्रीज थे, चाइना और इंडिया, अभी दोनों गुलामी में झगड़ चुके थे। बाकी सारे जो कंट्रीज हैं छोटे मोटे हैं, वो गुलामी में आ गए। और आगे जाके ऐसा माहौल हुआ, ऐसी हालत हुई कि अंदरों अंदर लूटपाट होने लगी। अफ्रीका को चीर फाड़ डाला। अफ्रीका के इतने इन लोगों ने टुकड़े किए, मैंने सब आपको समझाया है, कौन कौन सा भाग ले गया, कौन सा हिस्सा ले गया, सब मैंने आपको समझाया है। अफ्रीका का बंटवारा कर दिया। यूरोप में भी ऐसी हालत थी, जो छोटे मोटे कंट्रीज थे, वीक कंट्रीज थे, उस पे पावरफुल कंट्रीज ने अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश कर ली। तो इन लोग की, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इन लोग की ग्रीड की कोई सीमा ही नहीं थी।
इन लोगों को कितना चाहिए था इसका कोई माप ही नहीं था। वो क्या करते हैं उसका भी कुछ पता नहीं था। और इसीलिए जैसे 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 ग्रीड बढ़ती गई, अंदरूनी दुश्मनी बढ़ती गई, और आखिरकार इतनी बड़ी दुश्मनी हुई यूरोपियन कंट्रीज के बीच, which resulted in World War I. Is it clear? Am I clear, children? So let us start with our topic. Page number 11. Factors that caused First World War. इसमें एक important topic है सेडान वॉर। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 का नींव पाया ગુજરાતીમાં તમને કહું વર્લ્ડ વોર 1 નો પાયો નખાણો હતો સેડાન વોર થી। સેડાન વોર થયો તો 1871 માં અને વર્લ્ડ વોર 1 થયો 1914 માં। એટલે વિચારો 45 વર્ષ સુધી યુરોપમાં વાતાવરણ ધૂંધવાયેલું રહ્યું હતું। 45 साल तक यूरोप का वातावरण कैसा रहा होगा, क्योंकि 45 साल की अंदर दुश्मनी फ्रांस लेके बैठा था। तो विचारो 45 साल में फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के अंदर कितनी कड़वाहट भूल चुकी होगी, कैसी हालत होगी, कैसा माहौल होगा, आप सोच सकते हैं। है समझ में? So let us start with our topic. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. Right? 28th century में से मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, मॉडर्न डे से। मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे खौफनाक मंजर, सबसे डरावना मंजर था वर्ल्ड वॉर 1। Many factors were responsible for this. We cannot calculate 1 or 2 or 3 factors. Okay, there are 6 or 7 factors given over here, but we cannot take all these factors as the prime factors which relate to World War 1. इसके अलावा भी हजारों फैक्टर्स होंगे जो पूरी दुनिया को वॉर की दिशा में धकेल दिया था। समझ में? Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. 1914 को जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वो कैसे हुआ, क्या हुआ था, मैं आपको बताऊंगा, वो टॉपिक में जब पहुंचूंगा डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी आपको बोला ना बच्चों, 1914 का वॉर जो हुआ उसकी नींव रखी गई थी 1871 में सेडान वॉर के बाद। अभी आप गिनती कर लो, 1871 से लेके 1914 तक तकरीबन 45 साल हुए। तो विचारो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो 45 साल वाले हैं। वो 45 to 50 इयर्स में यूरोप में कैसा बदलाव आया, क्या हालत थी यूरोप की। यूरोपियंस, राजा, शासक, नेता लोग क्या चाहते थे, कैसे पूरे यूरोप को वर्ल्ड वॉर 1 में धकेल दिया। राइट? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1st August 1914. Germany had defeated France. अंडरलाइन करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। पेंसिल बेटा शुरू रखना, क्योंकि अभी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो मैं आपको बीच में बोलता जाऊंगा, ये आप मार्क करो, ये मार्क करो, वो मार्क करो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
Ready? Take your pencil or pen. I'm giving you 10 seconds. Come on, quick. जब भी बेटा लेक्चर्स होते हैं तब आप पेन पेंसिल लेके ही बैठना, हाँ? ताकि जो मैं बोलूँ, जो समझाता हूँ, आप आराम से मार्किंग कर सकते हो। और जो मैं समझाता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाता होगा। इसलिए ज़्यादातर मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि हर एक बच्चे अंडरस्टैंड हो जाए क्विकली और पूरा प्रिंट की माफिक, रील की माफिक वो लेक्चर सुन सके, देख सके, समझ सके। एक पिक्चर की माफिक चल रहा है, स्टोरी, राइट? अंडरलाइन करो, चलो। Ready with your pencil? Good. Germany defeated France in the Sedan War, because of which France has to sign the Treaty of Frankfurt in 1871. 1871 में जब सिडान वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट किया, तो जो जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, उधर दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई। वो साल था 1871, and that treaty which was signed between France and Germany in Frankfurt, it was called Frankfurt Treaty. उधर से जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी चाल शुरू हुई। फ्रांस इतना अंदर से दुर्दरा था कि अगर मौका मिला तो इसका बदला ब्याज सहित लेंगे। इतना जर्मनी ने फ्रांस को एम्बेरस किया था, इतनी बुरी तरह हराया था, इतनी बुरी तरह ट्रीटी साइन किया था फ्रांस ने। फ्रांस was humiliated. France lost all its self-respect, and that is why it was in a revenge mode towards Germany. अगर मौका मिला एक दिन आगे जाके तो इस अपमान का बदला सूद समेत वसूल करेंगे, और वैसा ही हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में वो आगे हम बात करेंगे, राइट? Germany defeated France in Sedan War, of which France had to sign a Treaty of Frankfurt in 1871, according to which France has to pay war fine. जर्मनी ने फ्रांस के पास से युद्ध का खर्चा भी लिया था उस वक्त। कितना वो तो मालूम नहीं, लेकिन खूब सारा पैसा लिया था। As well as give to provinces. जब तक वॉर फाइन फ्रांस जर्मनी को नहीं दे देता, वो छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, बड़ी रकम होती है ना। तो जब तक ये रकम वसूल नहीं हो जाती, तब तक फ्रांस का जो इलाका था, कौन सा सर्कल आउट करो बेटा, लोवरेंस एंड एबेसिस। लोवरेंस और एबेसिस, ये जो दो इलाके फ्रांस के थे, वो जर्मनी के कब्जे में रहेंगे। तब तक जर्मनी उधर से लूटपाट करेगा और अपना हक जमाएगा। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप अगर अपने घर में बैठे हो और आपके सामने कोई आपके घर में आके कोई चीज उठा के चले जाए, तो आप क्या करोगे? प्रोटेस्ट करोगे? उसको रोकोगे? उसके साथ हाथापाई होगी? क्यों? क्योंकि ये चीज आपकी है, आपके घर पे की है। कोई बंदा आपके घर में से आपकी नजर के सामने कोई चीज ले जाता है तो प्रोटेस्ट तो होगा ना। तो ऐसा ही हालत फ्रांस की हुई थी, लेकिन इधर फ्रांस प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। क्यों? ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, कि जब तक वॉर फाइन फ्रांस जर्मनी को नहीं दे देता, तब तक ये दो रिच मिनरल टेरिटरीज है फ्रांस की, कोल, आयरन, अदर मटेरियल, जिसकी जर्मनी को नीड थी। तो जर्मनी ये सारे मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके ये प्रोविंस में से
फ्रांस की नजर के सामने वो जर्मनी ले जाते थे। फ्रांस बिल्कुल चुपचाप तमाशा देखता था। कभी ऐसा हो सकता है क्या? और अंदर कितनी आग लगी होगी फ्रांस को, आप सोचो। जब ये मंजर होता होगा तब फ्रांस को कितनी आग लगी हुई। दिन ब दिन रिवेंज बढ़ता था। समझ में? France had not been able to overcome this humiliation. अभी मैंने समझाया, ये अपमान नहीं भूल सका फ्रांस। रोज नजर के सामने सब कुछ होता था, रोज अपमानित होना पड़ता था। कैसे भूल सके? फ्रांस के मन में एक घृणा सी हो गई थी जर्मनी के प्रति कि अगर मौका मिला तो जर्मनी को इतना पीटेंगे कि ये जो हमारे साथ किया ना वो ब्याज सूद समेत वसूल करेंगे। ऐसी एक भावना पैदा हुई थी, राइट? Thus, the Treaty of Frankfurt itself was the cause of First World War. जो मैंने अभी आपको बताया कि भले 1914 में वर्ल्ड वॉर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, लेकिन उसकी नींव रखी गई थी 1871 में सेडान वॉर में। अगर सेडान वॉर नहीं होता, जर्मनी ने फ्रांस पे ऐसा अत्याचार नहीं किया होता, तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता। है समझ में? वन फैक्टर। देन कम्स टू इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये जो फैक्टर था वो सबसे प्राइम फैक्टर था। कौन सा? सेडान वॉर का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, इंग्लैंड ने एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century. It is said England had 90 colonies in its pocket. 90 colonies in her pocket. तो 90 colonies में से वो लूटपाट करके सारा माल लाते थे, जाते थे। ईर्ष्या तो होगी, अभी जर्मनी ने उसमें घुस मारी। It exploited its colonies economically and became rich. वो तो सही बात है। Due to industrialization and swift colonization, एक के बाद छोटे बड़े देश को गुलाम बनाना, उधर से लूटपाट करना और अपनी जेब भरना, ये इंग्लैंड की फितरत बन गई थी। है समझ में? यूरोप required huge quantity of raw material. In the last quarter of 19th century, Germany also started to compete and procure the market in Asia and Africa. यूरोप और फ्रांस बेशुमार धंधा करते थे। अभी एक नया कंपटीटर ऐड हुआ, जर्मनी। जर्मनी में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हुई, बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हुई। और इतनी एक्टिविटी शुरू होने के बाद जो जर्मन कारखाने में जो माल सामान बनता था, उन लोगों ने एशिया और अफ्रीका में इंग्लैंड और फ्रांस से सस्ते दाम में बेचना शुरू किया। क्यों? कि वो इंग्लैंड और फ्रांस की मोनोपोली खत्म करना चाहते थे। इंग्लैंड और फ्रांस का जो धंधा था वो अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसीलिए अभी तीसरा कंपटीटर खड़ा हुआ, दो तो थे ही ऑलरेडी, फ्रांस और इंग्लैंड, अभी जर्मनी घुसा। So there was a fierce rivalry between these three: France, England, and Germany. क्या समझ में? Germany, in the last quarter of 19th century, Germany has started the competition to procure markets in Asia and Africa. Germany started, underline करो बेटा,
अभी ये जो मैं पढ़ता हूँ अंडरलाइन करने का, जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. They started to produce goods at cheaper rate. They started to sell the goods which was cheap than France or England. है समझ में? The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken by Germany. जो 300 साल से जो कॉलोनीज पे मार्केट्स पे हुकूमत कर रहे थे फ्रांस और इंग्लैंड, बहुत सारा मुनाफा कमा रहे थे, उसमें जर्मनी ने पंचर कर दिया. अभी ये सारा मार्केट जर्मन कब्जे में चला गया. फ्रांस को तो पहले से ही जर्मनी पे दुश्मनी थी, अभी ये इकोनॉमिक लॉस हुआ तो दोबारा गिनाया. सेकेंड, इंग्लैंड भी दुश्मनी में आया. ऐसा समझ में? Consequently, there was an intense economic competition between England, France and Germany. ऐसा समझ में? फिर मिलिट्रिज्म, जो भी पैसे की आय होती थी, इनकम होती थी, उसमें से वेपन्स बनने शुरू हुए. सारे देश में आर्मी, नेवी सब एक्सपांड करने लगे. उस वक्त एयरफोर्स नहीं था, बड़े बड़े उस वक्त के वेपन्स बनने लगे. तो खौफ में दूसरे देश वेपन्स बनाने लगे. अगर जर्मनी ने वेपन्स बनाना शुरू किया, फ्रांस और इंग्लैंड नहीं चाहते थे तो भी वेपन्स बनाना पड़ता था, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो चाहिए ना. तो यूरोप में एक रिसर्च की वेपन्स की रेस लगी. राइट? क्यों? कि यूरोप में मिलिट्रिज्म फैक्टर आया था. Right is might. Only the fit has to survive. बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी, ऐसा माहौल बन गया था. Military forces were necessary and important for the competition that European nation got into. सारे देश में, दुनिया के सारे देश में आर्मी होती है, लेकिन वो आर्मी किस लिए होते? पीस के लिए. अगर ऐसा कुछ हुआ वॉर तो वो शायद काम करते हैं, वरना आर्मी पीस टाइम के लिए होती है. नेचुरल डिजास्टर होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए होती है, देश में कई सारे काम है वो आर्मी करती है. आर्मी का मतलब वॉर नहीं होता है. हर एक देश आर्मी रखते तो इसका मतलब ये नहीं कि वॉर ही करे, क्योंकि वॉर में कई जानें चली जाती है, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. वॉर इज नेवर वेलकम इन ह्यूमन हिस्ट्री, नेवर. Military forces were necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion, England, France, Austria, Russia had begun expanding their military power. Right? ये सारे देश ने मिलिट्री को बढ़ावा देना शुरू कर दिया. But other countries like Japan, Italy, Germany, compulsory military training started. जब बच्चा 5 साल 10 साल का हो जाए, तब कंपल्सरी हर एक बच्चे को उस वक्त जापान और जर्मनी में और इटली में कंपल्सरी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती थी. He or she, whether boy or girl, they have to undergo a military training as a part of school activity. मतलब छोटी एज में वो लोग सोल्जर्स तैयार करते थे. 18-19 साल का बच्चा तो मिलिट्री में शामिल हो जाता था, वो अपने देश के लिए सैनिक बन चुका होता था. ऐसा समझ में? Production of weapons was increased. Right? दिन रात वेपन्स बनाने के कारखाने लगे, दिन रात
अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और एक देश ऐसा जुनून करता है तो दूसरे देश को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए सारे देश वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। Thus, militarism got an impetuous and military competition added to the economic competition, which created war atmosphere. वॉर का मंजर थोप दिया था। है समझ में? अभी यूरोप का एटमॉस्फेयर इतना विस्फोटक हो गया था कि कोई भी देश किसी पे भरोसा करना नहीं चाहता था। सतत अंदर से खौफ रहता था, डर रहता था, कल कुछ भी हो सकता है। सारे डरे पड़े। अभी ऐसे कोरोना की हालत में हम कैसे सब लोग डर गए हैं। रोज हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कई अच्छी समाचार नहीं मिलती है। अभी भैया एक दिन बुखार आता है ना तो भी हाथ पे पेट में घुस जाते हैं, वरना पहले बुखार आता था हम अच्छे हो जाते थे, सर्दी जुकाम होता था अच्छे हो जाते थे, केयर भी नहीं करते, बुखार आते थे घर पे पड़े रहते थे, आधे घंटे कर रेस्ट करके चले जाते काम पे। लेकिन आज कोई बंदा ऐसा बोले कि मेरे को बुखार आता है, मेरे को थोड़ी सर्दी हुई है, आज हमारी कैसी हालत होती है। इससे कई गुना खराब हालत उस वक्त यूरोप में थी। तो इसीलिए खौफ के मंजर में कई देशों ने आपस में ट्रीटी साइन कर दी कि अगर कुछ हुआ, अगर वॉर हुआ तो आप मेरे को सपोर्ट करना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हम दोनों लड़के दोनों इकट्ठे मिलके उसको गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो दैट इज थर्ड पार्ट, ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज। दरअसल ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज played a major role in First World War. है समझ में? The whole world was divided into two groups. उस वक्त तो यूरोप की हम बात करते हैं, whole world मतलब पूरा यूरोप। Before the First World War, on one side, the group was Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkey. इन लोगों ने आपस में साइन कर ली थी ट्रीटी कि हम 5 का ग्रुप होगा, अगर 5 में से किसी की हालत बिगड़ी तो पांचों मिलकर सामने वाले को सीधा कर देंगे, यूनिफाइड हो जाएगा। इसका देख के दूसरा करेगा, दूसरे का देख के तीसरा करेगा, ऐसा माहौल बनेगा, राइट? While on the other side, the group was England, France, रशिया एंड जापान। ये 4 पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने साइन किया कि भाई जर्मनी का कोई भरोसा नहीं, जर्मनी अभी पागल हो गया है 20th सेंचुरी में, तो जर्मनी शायद कुछ करे, इससे पहले हम उसको दबा सकते हैं, इसलिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो 4 इकट्ठे हुए। Thus, a feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was also the important factor of First World War. तो ये जो ट्रीटी साइन होती थी वो शांति के लिए नहीं थी, एक दूसरे के साथ मिलके लड़ने के लिए हुई थी। एक दूसरे के साथ मिलके आप लड़ो और सामने वाले को आप खत्म कर दो, ऐसा मंजर बन गया था। फोर्थ पॉइंट, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। मेरा देश ही महान है, आप सब निकम्मे हो, सिर्फ मेरे देश को, मेरे लोगों को जीने का अधिकार है, आपको कोई अधिकार नहीं है। हर एक मातृभूमि महान होती है, हर एक देश महान होता है। इसका ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना ऊंचा दिखाने के लिए किसी को आप नीचे गिरा, ये सरासर गलत बात है। वैसा माहौल उस वक्त यूरोप में हुआ था, ऐसा समझ। The independence of Belgium and Greece
एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के आसपास जो छोटे बड़े पार्ट थे वो सब यूनिफाइड हो गए, जर्मनी बराबर गया था उसमें, राइट. एंड इटली was a result of nationalism. बल्गेरिया ग्रीस से आजाद हुआ, जर्मनी और इटली यूनिफाइड हुए, बड़े बड़े. It was a part of nationalism. But later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. पहले नेशनलिज्म सबको अच्छा लगा, देशभक्ति, लेकिन आगे जाके वो देशभक्ति इतनी खतरनाक हो गई, इतनी खतरनाक हो गई, उसकी बात ही आप मत पूछो. समझ लो, इकोनॉमिक जेलसी, competition and colonialism in Europe had increased to so much that the national interest began to clash. जर्मनी को फ्रांस से दिक्कत होने लगी, फ्रांस को इंग्लैंड से दिक्कत होने लगी, इंग्लैंड को बेल्जियम से दिक्कत होने लगी. सारा संबंध खत्म हो गया है. Leading European nation began teaching extreme and destructive nationalism to the people. हमको इसे जिंदा रहने का हक है, सामने वाले को कुछ नहीं. मेरा जिंदा रहने के लिए सामने वाले को मरना पड़ेगा. ऐसा एक माहौल, ऐसी विचारधारा लोगों के दिल में घुसा दी थी, मगज में घुसा दी थी. समझ. Love for own nation and hatred towards other nation was encouraged. मेरा देश बड़ा है, आपका कोई अस्तित्व नहीं. मैं सच्चा हूं, आप गलत. The German chief, मतलब King Wilhelm Kaiser was the originator of nationalism and colonialism. वो जब सत्ता में आया तब जर्मनी में तो नेशनलिज्म इतनी हद तक बढ़ गया था कि जर्मनी में तो ऐसा लगता था कि किंग विलियम केजर पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुआ है. ऐसा समझ में. He was an over-ambitious and believed in world leadership. पूरी दुनिया का मैं एक ही राजा हूं, सब मेरे गुलाम हैं. He wanted to get things done according to his will and with the help of grand military power. The feeling of war spread across nations as Germany resulted into First World War. ये भी एक फैक्टर बना. फिर रोल ऑफ न्यूज़पेपर, उस वक्त न्यूज़पेपर में भी वॉर के बारे में अभी जैसे अभी न्यूज़पेपर में क्या कोरोना के बारे में रोज आता है कि नहीं, उस वक्त वॉर के बारे में आता था. न्यूज़पेपर added fuel to the fire. The newspaper of the Europe's nation aroused so much of hatred among the people. The mutual derogatory. Derogatory means बिल्कुल बीच कक्षा का आक्षेप लगाना, किसी को डिरोगेट करना, भयंकर रूप से अपमानित करना, प्रोवोकेटिव, किसी को उकसाना, एग्जैगरेटिव, बढ़ा चढ़ा के बोलना, इतना होता है वो इतना बोलते हैं, एंड फॉल्स राइटिंग बाय स्प्लिटिंग वैमन. वैमन मतलब जहर, वो लिखाई में इतना जहर उगलते थे ताकि पढ़ने वाला जो है उसके दिमाग में भी ये जहरीली बातें घुस जाए और उसका दिमाग भी फिर जाता था, उसका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में टर्न हो जाती थी. ऐसा समझो. Among rival nations and the rulers of the respective nations could not make any efforts for establishing peace and harmony. कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला था.
अगर जर्मनी के बारे में इंग्लैंड के न्यूज़पेपर ऐसा बुरा भला छापते हैं तो दूसरे दिन इंग्लैंड का न्यूज़पेपर जर्मनी को गालियां देते, दोनों को मिलकर फ्रांस गाली देते। क्या करें? क्या करें? सब कुछ तितर बितर हो गया है, सब खौफ का माहौल खड़ा कर दिया था। फिर फिलोसॉफी अबाउट वॉर, ऐसा मंजर आया कि अभी युद्ध एज कर लिया, एक बार वॉर करें नहीं किए, कहाँ पाने कहाँ पा ये लोगों ने एक्साइटमेंट थी की थी, एवं माहौल बनी गयो था कि लोगों ने वॉर सिवाय कहीं देखा कुछ नहोતું। Understood? The policy of war is welfare to routine down. યુદ્ધ એ જ કર્યા, યુરોપમાં હવે વોરની જરૂર છે, આવી મેન્ટાલિટી ફિક્સ થઈ ગઈ. The German writer Trotsky published maxims like only the mind has a desire to live. जो बलवान है, जो शक्तिशाली है, उसको ही सिर्फ जिंदा रहने का हक है, ऐसा मंजर क्रिएट किया था। वॉर अलोन इज अ नेशनल नीड। अभी देश की जरूरियात क्या है? वॉर। देखो, ये फिलोसोफर्स लोग बोलते थे, फिलोसोफर्स मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर गाइडिंग टुवर्ड्स द ट्रूथ, दे शोज द पाथ ऑफ रियलिटी। अभी ये लोग ही वॉर के बारे में बातें करने लगे, लोगों को प्रोवोक करने लगे, झूठा नेशनलिज्म लोगों के दिमाग में घुसाने लगे, तो भगवान ही बचा सकता है ना? भगवान ही बचा सकता है। War alone is a need. Nietzsche, the German writer, expressed war is a sacred work. War एक पवित्र कार्य है। एक राइटर ने तो ऐसा बोला था। वो कौन सा पवित्र कार्य करना चाहते थे हमको मालूम नहीं है, लेकिन वॉर एक पवित्र कार्य है, वैसा सोच। तो ये सारे फैक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर वन, इससे भी कई गुना थे, लेकिन दिस आर द प्राइम फैक्टर्स। वंस अगेन आई एम रीडिंग, सेडान वॉर, इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्रिज्म, सीक्रेट ग्रुप ट्रीटीज, फियर्स नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर and philosophy of war. These are the factors which led to World War One. बराबर है? तो आज ये सारे फैक्टर्स हमने किए. Now it is your time to take your homework. Come on, children. Question number 1. GR. Seeds of World War One was sown after Sedan War. बराबर है? Seeds of World War One was sown after Sedan War. जी हाँ. Militarism developed in Europe. Militarism developed in Europe. Third, GR. Fierce
fierce nationalism grew in Europe. In Europe. And GR number 4. Explain the role of newspaper in Europe. Right? तो ये 4 क्वेश्चन है आपके. Question number 1. Seeds of World War I was sown after Sedan War. GIA सारे मटेरियल में दिए हैं, सारे आंसर्स दिए हैं. नंबर 2. मिलिट्रिज्म डेवलप्ड इन यूरोप. बुक में है, मटेरियल में है. थर्ड. फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म grew in Europe. Fourth. Explain the role of newspaper in Europe. तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं जो आपको लिख के पीडीएफ के रूप में भेजना है. I hope you understood this lecture. In 8th lecture, we will continue more about World War I. Okay, children? Till then, see you. Goodbye. Stay at home.